want to talk about women because I'm a woman, especially when girls have to tap into like all of these masculine things, very early on in their life. They sort of put aside the feminine role. That's why a lot of us became high achieving, super ambitious. None of these are bad. It's not ingrained in us to be this ambitious and to have a drive and to go 9 to 5 and to abandon your motherhood role and abandon your child and sit at work and come back at 6 p.m., cook some meal. That is not how God designed the genders to be. Women should not have to need to work. They just should work because they want to work. That should be what the case is. And unfortunately, over the more than a couple of years, the role reversal has taken place, wherein women are having to tap into the masculine side of role, whereas they have to go to work. So much pressure is there on women today to like keep up with the masculine side as well, that it has completely shifted us from our feminine role. Like having to take care of an entire family is a woman's job. Providing logistics, planning, passport, visa, doing all the administrative work is the job of a man, is the job of the provider of the family. When a man serves a woman like that, the woman automatically wants to serve a man like that. We have gone against our feminine roles because the man has not provided us with, the man has not provided. She can cook for you. She will want to cook for you. She will want to make that coffee for you. She will want to prepare a dinner for you. But I can provide for myself. I can buy anything for myself. I can go anywhere. I have the freedom, time, everything. But I need to stop that. I want and I need a man. It's very simple. We all need a provider. Do we need to have the tension of providing for our parents, providing for our like future, providing for ourselves? No, that's the job of a man. How can someone raised by a single mother say that? Or perhaps her father did provide support, even if she often denies it. Having been raised by a single mother, I have never had such thoughts, and neither have women I know who shared that same experience. This is weird. She kept influencing how she never wants a child. She got pregnant and now is trauma dumping on that poor little girl. Same with her finding a provider because God forbid she has to take care of the child that she willingly brought into this world. She is easily earning well, but her greed is so evident. I honestly don't know why people follow her. The only thing she does consistently is crib about everything. Malvika is Rakebet final boss. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So in this video, we are going to talk about Malvika Sitlani and her man-pleasing attitude. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उनको नहीं पता मालविका सितलानी है कौन, तो मालविका सितलानी एक ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर है जो यूट्यूब के ओजी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स में आती है। उनके यूट्यूब पे अराउंड 800 के सब्सक्राइबर्स हैं एंड इंस्टाग्राम पे अराउंड 700 के फॉलोअर्स हैं। अकॉर्डिंग टू मालविका सितलानी, विमेन अपने फेमिनिन साइड को भूल रही है एंड गोल अचीव करना, करियर पर फोकस करना जैसे मस्कुलाइन रोल पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऑल्सो जो वुमेन अपने करियर एंड गोल को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, एम्बिशियस होती है, वो वुमेन की क्वालिटी नहीं है। 9 to 5 जॉब करना, अपने करियर को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने मदरहुड एंड चाइल्ड को अबेंडन करना, और ये सब वुमेन में एनग्रेव्ड ही नहीं था। बिकॉज ऑफ दिस नाउ पीपल लुक डाउन ऑन हाउसवाइफ। घर का ध्यान रखना ये वुमेन्स की जॉब है एंड प्रोवाइडर की जॉब मैन की होती है। जैसे ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मैन का ही होता है, लाइक वीजा, पासपोर्ट, अर्न करना, प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। इवन इफ वुमेन अर्न भी कर रहे हो तो भी वुमेन को किसी भी चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, और प्रोवाइड करने का काम सिर्फ मैन का है। इफ मैन प्रोवाइडर्स बन जाएंगे तो वुमेन ऑटोमेटिकली सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। वुमेन को जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ अगर एक वुमेन को जॉब करनी है खुद की विलिंगनेस से, तो ही उसको जॉब करनी चाहिए। अभी इसको कॉल आउट करते हुए मुस्कान मदान ने एक वीडियो अपलोड करा बाय सेइंग दैट I have followed you for years for your makeup content, but this time, respectfully, I don't agree, and let me tell you why. First, you said a woman will want to cook if you provide, and the minute a man provides, a woman will automatically want to serve. No, I don't have cooking genes. I don't have cooking hormones. No women have cooking hormones. Cooking isn't a feminine skill; it's a surviving skill. Every adult needs to know it. And cooking for someone isn't a reward you give them for paying your bills. Second, you said we all need a provider. No, we don't need a provider. We want a partner, not need, want. Support can be emotional, mental, financial when required, but turning provider into a rule is exactly how women get trapped in financial abuse. अकॉर्डिंग टू मुस्कान, हर वुमन में कुकिंग स्किल नहीं होती है एंड ये फेमिनिन स्किल नहीं है, ये एक सर्वाइविंग स्किल है। कुकिंग स्किल इज नॉट इनग्रेव्ड ग्रैंड इन वुमेन। ये स्किल हर ह्यूमन को आनी चाहिए, वो वुमन हो या मैन। एंड इफ आप किसी के लिए कुकिंग कर रहे हो तो दैट डजंट मीन आप रिवॉर्ड लेने के लिए उसके लिए कुकिंग कर रहे हो। मैन प्रोवाइडर नहीं होते एंड वुमेन डोंट नीड प्रोवाइडर बट वॉन्ट्स अ पार्टनर। सपोर्ट कैन बी मेंटल एंड इमोशनल। किसी पर डिपेंड होना वुमेन को केज कर देता है। जेंडर रोल एस्थेटिक ट्रेंड नहीं है जिसमें मैन को प्रोवाइडर ही होना पड़ता है एंड वुमेन को केयर गिवर ही होना पड़ता है। ईयर्स अगो जेंडर रोल की वजह से वुमेन को सप्रेशन झेलना पड़ता था। जेंडर रोल की वजह से बहुत सारी वुमेन ने अपनी लाइफ, गोल एंड फ्रीडम को सेक्रीफाइस कर दिया था, जहाँ पे प्रोवाइडिंग सिर्फ मैन का ही काम था और घर चलाना सिर्फ वुमेन्स का काम था। ये जेंडर रोल वाली सोसाइटी ना सिर्फ वुमेन्स को सप्रेस करने के लिए बनाई गई थी ताकि वुमेन पर अथॉरिटी रखी जा सके। मदरहुड के टाइम पे एक वुमेन बहुत कुछ फेस करती है। काफी वल्नरेबल फेस होता है एक वुमेन के लिए, वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। एट दैट टाइम शी नीड्स लव, केयर एंड सपोर्ट। मदरहुड की वजह से वुमेन को अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं छोड़ना चाहिए, और तभी एक वुमेन की मस्कुलाइन साइड दिखती है
जब मैन उनकी लाइफ में सिर्फ एज प्रोवाइडर नहीं होता। अर्निंग, वर्किंग, पेइंग योर बिल्स इज नॉट मस्कुलिन, बट इट्स जस्ट बीइंग एन एडल्ट। एंड पेइंग योर ओन बिल्स, काम करना और अर्न करना एक बेसिक स्किल होती है, हर एडल्ट को आनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू मुस्कान, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन जैसे टर्म पेट्रियार्की कंडीशनिंग है जो लोगों के थॉट्स को बैकवर्ड करता है। अभी मालविका सितलानी की इतनी ह्यूज फॉलोइंग है एंड उनको काफी यंग गर्ल्स भी फॉलो करती है, उनको अपना रोल मॉडल भी मानती होगी। बट उनको जेंडर रोल के बारे में ये सब सिखाना जबकि उन्होंने रियल वर्ल्ड देखा ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा गलत है। मालविका सितलानी के ये जेंडर रोल रिलेटेड थॉट्स काफी बैकवर्ड है। 2025 में भी वुमेन अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, अपने फ्रीडम के लिए अभी फाइट कर रही है। वुमेन अपने राइट्स को सेक्रीफाइस करती है बिकॉज सोसाइटी उनको इक्वल राइट्स नहीं देती है। जब ऐसे क्रिएटर्स अपने फैंस को जेंडर रोल प्रीच करते हैं, बट इन रियलिटी इन क्रिएटर्स ने लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया होता, इनको सब चीज़ें इजीली मिल जाती है, इसकी वजह से ये सबकी लाइफ को ईजी समझता है। एंड फैंस ये भूल जाते हैं दैट सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है एंड सबके स्ट्रगल्स भी काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। जेंडर रोल की वजह से काफ़ी सारी वुमेन ने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस किया, अपने गोल्स, एंडलेस सिचुएशन जो उन्होंने सही है, जिसकी वजह से आगे जाके वुमेन को इक्वली राइट्स मिले। बट ये क्रिएटर सबको बैकवर्ड ले जाना चाहता है, जिससे वुमेन को और अप्रेस करा जाता है। सी, अर्न करना, करियर बनाना, गोल अचीव करना भी वुमेन के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई वुमेन हाउसवाइफ बन के अपनी फैमिली की केयर करना चाहे तो वो भी गलत नहीं है। मालविका के अगेंस्ट ये फर्स्ट टाइम एलिगेशंस नहीं लगे, उनके अगेंस्ट ये भी एलिगेशंस है कि वो अपने बेबी को भी यूज करती है फेम के लिए। फेम के लिए उनके बेबी का छोटे से छोटा मोमेंट सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सो मालविका हैज अ 2-year-old डॉटर अबिगेल विद अखिल आर्यन। जब मालविका प्रेग्नेंट थी तब उनका एंड अखिल का डाइवोर्स हो गया था। मालविका अपने बेबी से रिलेटेड हर एक डिटेल्स को ऑनलाइन पोस्ट करती है, जिसकी वजह से लोगों ने कॉल आउट भी करते हैं और इसी वजह से उनके बेबी के बारे में हर डिटेल सबको पता है। बट ये क्रिएटर एंटाइटल्ड वे से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उनको पता है बेबी कंटेंट को इजीली मोनेटाइज किया जा सकता है, और क्योंकि डाइवोर्स की वजह से वो उनके बेबी को एज सिंगल मदर रेस कर रही है, इसकी वजह से फैंस से उन्हें सिंपैथी भी मिलती है। पर ये क्रिएटर ये भूल जाता है दैट सब ऑनलाइन पोस्ट करने में उनके बेबी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है। इवन जब से मालविका प्रेग्नेंट थी तब से वो सिर्फ कंप्लेन ही कर रही है दैट शी डजंट हैव दिस और दैट, बट इमेजिन जब उनकी बेबी बड़ी होके ये सब देखेगी तो ये सब उसके लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा। एंड इसकी वजह से उसको बुलिंग भी फेस करना पड़ेगी इन फ्यूचर, क्योंकि उनकी मॉम एक क्रिएटर है एंड उन्होंने अपने बेबी के बारे में हर चीज़ ऑनलाइन पोस्ट कर दी फेम के लिए। प्लस फैंस उनको इसलिए भी कॉल आउट करते हैं दैट शी इज ऑलवेज क्रिबिंग अबाउट द प्रेजेंट थिंग्स इन हर लाइफ। जब मालविका प्रेग्नेंट थी तब उनकी प्रेगनेंसी डाइवोर्स को ब्लेम करती थी। आफ्टर बर्थ ऑफ अबिगेल शी क्रिप्स अबाउट सिंगल मदर एंड पोस्टमार्टम, नो वन टू हेल्प हर, बट इन रियलिटी उनकी हेल्प करने के लिए उनकी मॉम एंड उन्होंने नैनी भी हायर करी थी जो उनकी हेल्प कर सके। आई नो सिंगल मदर होना काफ़ी डिफिकल्ट होता है जब आपको हर चीज़ सिंगल हैंडेडली मैनेज करना होता है, बट हर बार सोशल मीडिया पर ब्रेक करने से कुछ नहीं होता है एंड उनके इस बिहेवियर की वजह से उनकी ट्रू ऑडियंस उनसे दूर हो रही है। अभी जब भी उनको कॉल आउट करा जाता है तब वो अपने सोशल मीडिया पर अपने से या अपने बेबी से रिलेटेड इमोशनल पोस्ट शेयर कर देती है एंड उनकी ऑडियंस को भी गैस लाइट करने का ट्राई करती है। मालविका ने ना 2020 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अखिल से 10 ईयर के रिलेशनशिप के बाद मैरिज करी थी, बट विद इन 2 years दे स्टार्टेड हैविंग इशू इन देयर मैरिज, और उसी इशू की वजह से मालविका एंड उनके हस्बैंड का डिवोर्स हो गया 2023 में, जो कि एक म्यूचुअल डिवोर्स था। उनका डिवोर्स तब हुआ जब वो प्रेग्नेंट थी और इसकी वजह से उनको सोशल मीडिया में इमेंस अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन मिला, सेइंग दैट कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। बट उनके डिवोर्स से रिलेटेड काफ़ी स्पेकुलेशन करी जा रही थी दैट मे बी अखिल चीटेड ऑन हर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर वीडियो अखिल को कमिटमेंट इशू थे एंड अखिल अभी और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इवन अखिल ने खुद को एक बटरफ्लाई बताया जो डिफरेंट फ्लावर्स को ट्राई करना चाहते थे। आई मीन जब आपको एक्सप्लोर ही करना था तो आप 10 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप में क्यों ही रहे। एंड स्टेटमेंट की वजह से फैंस ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया दैट मे बी अखिल चीटेड ऑन मालविका, बट जब उनसे डिवोर्स का रीजन पूछा जाता है तो वो उसको म्यूचुअल डिसीजन बता दिया एंड मालविका ने कभी भी अखिल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। जब आपने खुद ने इतनी प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल्स देखे हैं तब भी आप एक वुमेन को ये सब प्रीच करते हो एंड एज अ बिग क्रिएटर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वुमेन को इंडिपेंडेंट होना सिखाए, उनको अपनी लाइफ में गोल अचीव करना, अपने ड्रीम को फुलफिल करना सिखाए, करियर को इम्पोर्टेंस देनी सिखाए। इन सब के लिए इंस्पायर करना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट बनने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। अभी उनकी लाइफ में जब उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हुआ एट दैट टाइम वो खुद ही तो अपने बिल्स पे कर रही होंगी ना। अगर वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या वो अपने हस्बैंड को छोड़ पाती? ये जो म्यूचुअल डिसीजन था डिवोर्स का, क्या वो खुद ले पाती अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती? तो
आई डोंट थिंक सो कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती तो वो ये डिसीजन इतना जल्दी ले पाती, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट होते तो सबसे पहले आपके माइंड में यही थॉट आता कि आप अपने बेबी की अपब्रिंगिंग कैसे करोगे सिंगल हैंडेडली, राइट?